experience of death, how is it for a normal human being? What is the thought during those last moments? Is it an experience of some kind of a going into deep sleep, or it's some kind of becoming unconscious? And is there any kind of rational thinking, logical thinking which remains after that, or it's a dream-like state? What is that, and what is the experience after that? And is that experience different for a normal human being and for a sadhana? First of all, so far I don't have this experience. Fortunately. So I can tell you something which is somebody else's experience or somebody else's, you can say, teachings. So just like everybody's life is different, isn't it? Somebody's poor, somebody's rich, somebody's happy, somebody's sad, somebody's awake, somebody's not awake. Same way, death is different for everybody. Totally depends on the mental condition of that person who is dying. What is the condition of the body? What is the condition of his unfulfilled desires? What is the condition of the mind? What is the condition of spiritual progress? Many factors, many variables. And among those variables, the death happens. So it will be a variety of experiences. Starting from, like you said, total unconsciousness, darkness. Like going to sleep, yes. Sleep of ordinary person. Same. And how many people will get that experience? 99%. Their lives are already like sleep. All they need to do is stop breathing. Very easy. Death is easy for them. There are a few people who have lived a little bit more active life and so on, who have done some good deeds, some bad deeds, who knows. But they are not totally asleep. For them, there will be a short afterlife. There will be a life which will be kind of, you can say, consequence of their physical life. If they have done something good, they will have good experiences. If they have done something bad, they will have bad experiences. And there is your theory of heaven and hell. From there it comes. But not everybody. Only few selected people will experience this. But obviously they won't remember anything. And after a while, the next allotment happens and next birth happens. For a few people, there will be very nice experience who have led a spiritual life, who are awakened, who are aware, who have knowledge, who have done the sadhana practices, and they will have a very unique VIP kind of perspective there. The Guru comes to receive him, then gods and goddesses come to receive him, and he is taken to a special place, special lok. There he fulfills his remaining desires, whatever happens. And if there is still some reason to take birth, he is given a royal birth. By royal I don't mean the king. Royal means very nice birth, where he is born according to his wish. That will happen to one in a million or billion, who knows. These are stories, isn't it? It's not my direct experience. These are the stories. And there will be few more very, very rare cases where there won't be any birth. They will be freed from the human lineage of human wombs. No more birth. They will be called the Dev Yoni. Divine, Dev. So, just like the variety of people is so much, the variety of death is that much. Everybody will get their own experience.
they should be ready for it. It can happen anytime. So how will you know that this is the truth? There is a way to find out. That is called dying before dying. And that is the opal trick. Like somebody was saying, why have to do it? Why to do it? It's going to happen anyway. So you will learn it. You will learn firsthand what happens. So those who are in a hurry to know, I can't. This is my, goal of my life to know what happens after death. There are many techniques. They can do that. And those who want to wait, I'll check whenever it happens, it will happen. Don't worry. Everybody gets this experience, you see. So the problem is you have taken this experience many times, you don't remember it. What if I simply make you recall all those experiences? It would be much better, no? How to do that? Progress spiritually. Adhyatmik vikas. You will know everything. Gautam Buddha came to know about all his lives simply by sitting in one place, you see. He sat under the tree. He came to know everything. Is it that easy? Yes, for a person of that attainment, it is this easy. Why it is difficult for us? We are babies, you see. We are growing. One day we will know everything. So, right now we can adopt a theory. Just like I have adopted this theory that there are different kinds of deaths. You can adopt something like this. Instead of fixing on one, no, everybody will become unconscious. No, everybody will come to heaven, go to heaven. And that's not true. It's not possible. Like everything, Maya is always more complex than we think. So, if you adopt a good theory, you will gain more knowledge about this. If you want direct experience, there are techniques to die. If you are on the path of knowledge, no need to know. You know that which never dies. That is all you need to know. Whatever dies is not me. And the death is an illusion. So now what is there to know? Nothing. गुरुजी, सुमा जी का क्वेश्चन आया ग्रुप में। इस अस्तित्व में प्रकट भाग में सब अपने आप ही हो रहा, जैसे शरीर द्वारा जो कर्म होते हैं वो अपने आप ही होते हैं। अनुभव करता तो केवल साक्षी मात्र है, तो सब अपने आप कैसे हो रहा है? कृपया प्रकाश डालें। जब हम रात में सपना देखते हैं तो वो कौन कर रहा है वो सब घटनाएं? कौन बना रहा है वो लोगों को, पशु पक्षियों को, बिल्डिंगों को, कारों को? जो कहानी दिखाई देती है वो किसने लिखी है? जैसे वो अपने आप हो रहा है वैसे ये सपना भी अपने आप हो रहा है। कैसे? कैसे तो मत पूछो। इस अस्तित्व में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कोई जवाब नहीं मिलेगा। हो रहा है बस।
आपकी जो धारणा है उसके बारे में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब गलत है। अगर वो उसका हमें पता रहता कि वो क्या है, तो हम उसे माया नहीं कहते, तो हम उसे अज्ञेय नहीं कहते। इतना ही बताया जा सकता है कि ऐसा हो रहा है, और आप जो भी सोचते थे उसके बारे में सब गलत है, इतना ही ज्ञान होगा। हाँ, हम मॉडल बना सकते हैं इसका। आपने कैसे पूछा है तो प्रक्रिया बतानी पड़ेगी ना। तो हमने मॉडल बनाया नाद का कि ब्रह्म में नाद है, शून्य में नाद है, और वो नाद सभी रूपों में प्रकट है, और नाद में गति भी है और कंपन भी है, दोनों है। तो जहाँ जैसी गति की बात आती है तो होने लगता है कुछ ना कुछ रचनाएं बनने लगती है, कुछ ना कुछ क्रियाएं चलने लगती है। इसको हमने क्या कहा है? चित्त। जो भी हो रहा है वो चित्त है, जो भी अनुभव हो रहे हैं वो चित्त के हैं। अब इस स्टडी किया जा सकता है इसको अच्छे से, मॉडल बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे का उत्तर आ गया होगा कैसे हो रहा है, लेकिन अंत में यही पता चलता है कि वो सब विज्ञान है। ज्ञान ये है कि मैं हूं और मेरा सपना है, वो सपना ही मैं हूं। स्वप्न और स्वप्न दृष्टा एक ही है। आप कैसे क्यों पूछते हो? अगर वो दो होते तो एक का दूसरे से कुछ होता, संबंध होता, दोनों में कुछ प्रक्रिया होती इधर उधर। ये मैं ही तो हूं जो हो रहा है इतना जान लो, फिर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कैसे हो रहा है ये प्रश्न तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों हो रहा है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव करता है मैं यूं कर रहा हूं इसे। क्या ब्रह्मन ने कहा है कि इस कारण से मैंने माया रची है? नहीं, वो तो कहता है मुझे दिख रहा है कुछ, ये तो भी तो अच्छा मैं हूं, हाँ ठीक है। उससे कुछ नहीं, उसमें कुछ मनुष्य के गुण नहीं है, उसमें पूछने वाले गुण नहीं है, उसमें प्रश्न करने वाला कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, शून्य है। ब्रह्म तो नहीं पूछता। अभी कौन पूछता है? ये हमारी बुद्धि पूछती है। तो बुद्धि क्यों पूछती है? क्योंकि संसार में वो पूछ कर ही जीवित है। खाना कहाँ है, खाना कैसे बनाना है, शादी कैसे करना है प्रश्नों के आधार पर ही तो वो जीवित है। तो वो अस्तित्व पे भी लगा रहता है, जो कि पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। अस्तित्व में प्रश्न नहीं है, और इसलिए अस्तित्व में उत्तर भी नहीं है। तो ज्ञान मार्ग आपको उत्तर नहीं देगा, प्रश्न समाप्त कर देगा, ताकि आप जो हो वो बच जाओ, आप जो हो वो हो जाओ, प्रश्न रहित, उत्तर रहित, शांत आनंद में आ जाओ। ये ज्ञान मार्ग कर देता है। उसके बाद पूछने का भी मन नहीं करेगा। पूछने वाला कौन है आप बोलेंगे? जो पूछता है वो भी मिथ्या है, जो उत्तर देता है वो भी मिथ्या है। जो इस मिथ्या का दृष्टा है वो सत्य है। वहां कोई प्रश्न नहीं, क्यों, कैसे, कब, कहां, बेकार की बात है। मैं हूं, सभी रूपों में मैं ही हूं। अब पूछना बंद करो जो हो जाओ बस, दी एंड है उस स्टोरी। ज्ञान मार्ग का अंत है, यहाँ पे अंत होता है ज्ञान मार्ग। इसके आगे प्रश्न आगे तो डांट पड़ती है प्रणाम, मैं अजय दिल्ली से त्रिज्ञान आपसे लिया था। उसके बाद अभी चरण 2 चल रहा है कार्यक्रम का। तो अभी लेख लिखने में बाधा आ रही है कि मैं बाकी सारे काम दिन के कर पा रहा हूँ, पर लेख लिखना होता है मैं उसको टाल रहा हूँ बार बार। और फिर मेरे दिल में पूरे दिन ये गिल्ट रहता है कि साधक हूँ मैं, मेरा मार्ग भी मुझे पता है, तो मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहूँगा आपसे। जब लेख लिखना रहता है तो आप क्या करने लग जाते हैं? गुरुदेव, ऐसा होता है कि कभी मुझे नींद आ रही है और कुछ भी करके, मतलब मैं खुद ही चालाकी कर रहा हूँ,
और जानते हुए भी फिर पूरे दिन इसी गिल्ट में रहता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे एक बात तो बताइए, कोई एक नींद आपने बोला एक, जी तो सोने के बाद लिखी। जी अगले दिन सुबह उठ के आप कहना चाहते हैं। और आपने कहा बहुत सी चीजें हो रही। जी नंबर 2 क्या है? नहीं बाकी तो सब ठीक चल रहा है, मतलब काम सब में कोई भी रोक नहीं पा रहा है, ऐसा भी नहीं कि समय नहीं है मेरे पास निकालने के लिए। बस नींद ही प्रॉब्लम है। नींद तो है हाँ, बाकी मैं विचलित रहता मान ली कुछ भी और कर लूंगा, लेकिन लेख लिखने की बारी आती तो मैं स्किप कर रहा हूँ उसको बार बार। वही मैं पूछ रहा हूँ, और कुछ क्या है? ऐसे तो मैं समय नष्ट कर रहा हूँ कुछ भी, मतलब चाहे आपका सत्संग ही सुन रहा हूँ, सत्संग में आया हूँ और ये सब चीजें कर रहा हूँ। सत्संग सुन के लिख लीजिए। जी खेलने का मन करता है? जी मैं खेलता भी हूँ। खेलने के बाद लिख लीजिए। खाने का मन जी, करता है? पीने का मन करता है? कोई बात नहीं, चित्त की पहले मान लो वो जी। अवरोध पैदा कर रहा है। जी गुरुदेव मैंने कुछ इच्छाएं भी पूरी कर ली सारी अपनी की, मूवी देख लेते हैं ऐसा ना हो इस मन में इच्छा रुक रही, आप कहते हैं कि उसको दमन करोगे तो वो और बढ़ के आएगी, तो वो भी पूर्ति कर ली वासनाओं की भी, पर वो फिर भी हाँ, ये अवरोध है, अवरोध, ये इच्छा नहीं। मतलब कोई विकार है मन में तो विकार अवरोध है। तो अवरोध का इलाज क्या है? आप उसे जितना मारेंगे उतना स्ट्रांग होता है वो। जी 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 ऐसे ही बात। तो उसका करने दे, उसका होने देना है। नींद आती है, पहले सोना है, उठकर वापस शुरू, अगर फिर से नींद आती फिर से सो जाओ। ऐसा होगा नहीं वैसे? ऐसा होता है कई बार, मतलब मुझे लगता है कि आज ये करूँगा फिर वो छूट जाता है। हाँ। लिख लेता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ, उसको टाइप करना है वो टाइप नहीं कर पा रहा मैं, मतलब चालाकी है ये मेरी खुद की, मैं इतना तो देख पा रहा आपकी हूँ। नहीं, वो चित्त की। जी कोई बात, कुछ दिनों में चलता है ये अवरोध, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो यही कीजिए आप, जो जी, वो एक कहीं डर है कुछ, वो उसको एक्सप्रेस होने से रोक रहा है, तो उसको जो करना है करने दो, लेकिन आपको थोड़ा सा लिख देना है, 2 शब्द ही सही जी लिख देना है। संकल्प यहाँ पे काम आएगा आपके, कि चाहे मेरा ये करने का मन हो, चाहे वो मेरा करने का मन हो, लेकिन उसके बाद मैं एक लाइन तो जरूर लिखूंगा। तो वो कहता है मुझे ये भी चाहिए, चित्त कहता है वो भी चाहिए, वो सब देने के बाद अब वो आपको अलाउ कर देगा थोड़ा सा लिखने के लिए। ऐसे धीरे धीरे वो काम होता जाएगा। जी धन्यवाद। एक महीने बाद दोबारा बताइए मुझे क्या हुआ, जी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, 1 महीने बाद दोबारा बताइए। जी मुझे कहना था जी, अभी आपने कहा चित्र अनुभव करती है। हाँ जी बोलिए। आपने कहा कि अगर नींद आती है तो सो जाओ, मन करे नींद आए तो सो जाओ। वैसे तो पूरा दिन ही मन करता है सो जाए तो। देखिए, ये इस शरीर की एक सीमा है, तो पूरा दिन नहीं सो सकता। आप प्रयास करके देख लीजिए, रात को सोने के बाद आप दिन में भी सोने का प्रयास करिए। हो सकता है एक दिन आलस आ जाए और सोता रहे, अगले दिन उससे कुछ और काम चाहिए होगा। तो मेरा यही कहने का मतलब था, जो मैं अजय को बता रहा था, कि उसकी सुन लो पहले, वो क्या चाहता है उसी कर दो पहले। वो फिर भी ठीक ना हो तो फिर आप मुझे बताना। आप कुछ लिख रहे हो? गुरुजी तो वही मन करेगा ना, ठीक है आपका मन करे तो जब मन करे खेल लो, मन करे तो फोन चला लो, तो मन जो ये तो फिर तो करेंगे। क्या कब करेंगे सुनाएंगे? मतलब मन करेगा कि फोन चला लो, चलाएंगे, खेल लो तो खेल लेंगे, खाना खा लो तो खाना खा लेंगे, तो पढ़ाई या बाकी चीज तो करेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा था संकल्प का महत्व है।
आप एक डील कीजिए उसके साथ, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं तो नहीं कहेंगे, डिस्ट्रैक्शन है, उसके साथ एक डील कीजिए कि मैं ये कर दूंगी, फोन के साथ खेल लूंगी, मैं ये खाना खा लूंगी, मैं घूम के आ जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मुझे ये चीज करनी है, जो पढ़ाई है आपकी, ये जो लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, थोड़ी सी करनी है 5 मिनट। इस तरह से वो डील कर लीजिए आप, इसको हम कहते हैं संकल्प, और देखिए फिर क्या होता है। अगर वो काम में रस होगा तो वो धीरे धीरे होने लगेगा। जो जरूरी काम है उसमें रस होगा तो रस होना जरूरी है। अगर वो नीरस होगा तो आप नहीं करेंगे, फिर आप कितनी भी डील कर ले वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है उसमें। अजय के केस में उनकी इच्छा है लेकिन अवरोध है, तो पहले इच्छा होनी चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता फिर। और आपने सुबह कहा था कि तंत्र है, तो तंत्र ज्ञान भी एक मतलब मार्ग ही है, जैसे ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, जैसे तो तंत्र वो सब सही है। तंत्र में 2 तरह के मार्ग हैं। एक मार्ग होता है जिसमें कि अच्छा नहीं होता हो, जिसमें कि नुकसान पहुंचाया जाता है, शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। और दूसरा तंत्र वो होता है जिसमें अपनी शक्ति बढ़ाई जाती है, जिसमें सिद्धियां प्राप्त की जाती है, विकास किया जाता है। तो वो जो दूसरा वाला है उसका हम सपोर्ट करते हैं बस। तो ऐसे ही कि चाकू का उपयोग आप सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हो और किसी का गला काटने के लिए भी कर सकते हो। अब किसका सपोर्ट करेंगे? क्या चाकू को फेंक देंगे? नहीं, उसका उपयोग सही करेंगे। तंत्र मार्ग तब कहा जाता है जब उसका उपयोग अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए किया। Sir, I have a question. Yesterday, day before yesterday, I saw Tom Campbell's video you had posted in that. वंदना जी का जो वर्डिंग्स थे, so it's my contemplation whether it's right or wrong, I don't know. It is one of the observed qualities of the observer that it reflects the illusion. It's the reflector. Is this contemplation right? The mirror itself has no qualities, that is why it is able to reflect everything, right? That is why we say, because the observer has no qualities, it can faithfully show all the qualities. Probably that is the meaning, right? How this is connected to Tom Campbell, I don't know. Tom Campbell was mentioning this consciousness as a mechanism. So for that it was not acceptable to me. It is a mechanism, he was saying. So I said, what kind of mechanism it could be? So it is a reflector of illusion. This is what I contemplated. Yes, very correct. So his mechanism or system is exactly the same. Only the name is different. And they don't have the concept of the experiencer. There is no concept of the experiencer. So you can say his theory is more like the Shakti theory, where Devi is everything, the reflected and reflector both is Devi, and they have removed the Shiv from. So Tom has done something simple, something similar. The system is the consciousness. The system is conscious, he says. And that is easy to understand for Western people. Very easy. Because they put the experience first. And what do? We put the experiencer first. Hardly difference. Hardly any difference. Why do we put the experiencer first? Who can tell me? Because it doesn't change. It is the truth.
It was logical to put it first. The real nature of existence is the experiencer, we say. And then we almost forget that whatever is happening, whatever it is reflecting. But some people may not like this. They need something tangible, something more like a can be grasped by the intellect. So Tom has done that. You see, he reversed it. Still effective. Still it is effective. Brilliant. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आज नम्रता गुरुजी के हाँ बोलिए। गुरु ये बताते थे कि मुझे तो भ्रम सा है शांत और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है गुरु। परंतु क्या ये अनुभव में आ सकता है या मुझे लग रहा है कि जान ही नहीं हूँ, समझ नहीं हूँ। जो आपका स्वभाव है आनंद, वही अनुभव में झलकेगा। एक ही बात है। आ कहाँ से आप पूछेंगे ना कि आपको वस्तुओं से आनंद आ रहा है, कि आपको लोगों से आनंद आ रहा है, और उत्तर ये आएगा नहीं, आनंद तो मैं मुझमें से आ रहा है। तो जो आप आनंद है जिसको आप जान गए हैं, वही अब सब जगह झलकेगा, वही सब जगह प्रकट होगा। तो बिल्कुल सही हो रहा है, उसको अनुभव मान सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। उसका स्रोत मैं ये भी जान लीजिए, इसको ध्यान रखिए बस। I have a question. It's a query. On path of knowledge, is bliss and peace the same? We consider state of peace is also state of bliss. Yes, yes. Peace is bliss, bliss is peace. But why do you have two names? Yeah, that's not it. It is simply to convince those who are after peace. Some people want peace. What do we say? You are peace. Some people want happiness and bliss. What do we say? You are bliss. Some people want freedom. You are free. So, just to satisfy people. Why are there so many names? You are empty, and you are Shiva, you are Brahman. Why? Everybody should get prasad little bit. That's it. हाँ, कौन है ऑनलाइन को पूछ रहे थे कुछ? रिंको, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, कृपा बनाए रखना। मैंने एकदम फोन पर मुझे देखा कि आप सभी लोग मेरे सपना में गायब हो गए। गुरुजी, मैंने आपसे बहुत बात करने की कोशिश की। डॉक्टर ने ना उन्हें बोल दी मेरा 19 तारीख को बोला है। अब तो मैंने आपको एड्रेस की बोल दी। मेरा प्रोग्राम भी अच्छे से हो जाए और जरूर होगा। आपको पूरी तरह ठीक हो भी जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है। जरूर। मैं ध्यान बात पर भी अच्छी तरह चलती हूँ गुरुजी। मैं बात करती नहीं है। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की। अच्छा, बहुत दिन से दूसरे कामों में लगा हूँ। तो आप मनी में बोल देंगे तो भी वही इफेक्ट होता है, वही असर होगा उसका।
मैं मन तो रोज ही बोलती हूँ। तो इस व्यक्ति के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं, सीधे प्रार्थना कीजिए। पर मैं भी तो आदमी भी हूँ, तो सीधे तो बोल सकते। पर फिर भी एक बार बात हो जाती है ना तो मन थोड़ा सा शांत हो जाते हैं कि हाँ मैंने वो प्रभु जी को। अच्छा। हाँ बात सही है। बस गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जरूर पूरी तरह से आपके साथ। और तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं और अगली बार दोबारा मिलेंगे, कहीं किसी जगह पर सत्संग रखेंगे तो सभी लोग वापस आएंगे। सभी का सम्मेलन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार। द्वार द्वार खोजा था जिनको, द्वार द्वार खोजा था जिनको, आए आज वो द्वार। हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार। बंदी हम मन था प्राचीन, हाथ थपाते चुका था धीर। जैसे नदी पड़ी बेनीर, कैसे कहती दिल की पीर। मेघा बरसा नदियाँ छलकी, मेघा बरसा नदियाँ छलकी, मिला गुरुवर का प्यार। हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार। था विस्मृत में अनजाना, आप जना गए तब जाना। था विस्मृत में अनजाना, आप जना गए तब जाना। राज सकल मेरा थामा, दास स्वयं को थामाना। सिंहासन पर हमें बिठाकर, सिंहासन पर हमें बिठाकर, किया सकल उद्धार। हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार। धारा शब्द से तू उस छोर, उतरे आप से लेकर डोर। हम ही हम दिखते चहुओर, रात गई उजली है रोर। हे करुणामय कृपा आपकी, हे करुणामय कृपा आपकी, आप आए हम पार। हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार। द्वार द्वार खोजा था जिनको, द्वार द्वार खोजा था जिनको, आए आज वो द्वार। हे गुरुवर आभार, हे गुरुवर आभार।